Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you all once again in a new chapter. And the name of this chapter is Matter and its States. To be very honest, my dear student, this is very interesting chapter. And I'm sure that you will enjoy while learning these concepts. These are entirely new concepts for you. पहली बार आप इसको सुनेंगे और समझेंगे और enjoy करेंगे. लेकिन चैप्टर में जाने से पहले मुझे एक बार रीड करने दें इन एसएलओस को. इस चैप्टर के 7 एसएलओस हैं. देयर आर 7 एसएलओस इन दिस चैप्टर. नंबर 1, define matter and give examples. This is very interesting one. SLO number 2, identify 3 states of matter with examples. God, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान है. Number 3, compare solids, liquids and gases on the basis of shapes and volume. This is another interesting SLO. I like to teach and you will like to learn. And the 4th one SLO is demonstrate and explain how matter changes its state on heating and cooling. किस तरीके से ये state of matter change होता है. And the 5th one SLO is explain how one state of matter, for example solid, liquid and gas, dissolve in another. यानी एक दूसरे में किस तरह dissolve होती हैं. And the 6th one SLO is predict and demonstrate how various materials mix with water. कुछ चीजें वाटर में डिजॉल्व होंगी, कुछ नहीं होंगी. ये भी इंटरेस्टिंग है. इसमें हम एक्टिविटी भी करेंगे और हम इसको एंजॉय करेंगे. द 7th SLO इज demonstrate separation of insoluble solids from water by filtration and decantation. So ये दो प्रोसेसेस भी हम करेंगे. हम प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करेंगे और खुद परफॉर्म करेंगे and you will really love it. So my dear student, taking start from the word matter. Now this is your turn. Have you heard about matter? कभी तुम लोगों ने मैटर के बारे में सुना है? शाबाश. Okay, let me define what is matter. प्यारे बच्चों, remember 2 things there. Number 1, matter क्या है? Anything that occupy some space and possess mass. जिस चीज का जो चीज वजन रखे, mass, and occupy space. If you remember these 2 things, you can never forget the definition of matter. Matter is yours if you remember. यानी matter वो हर एक चीज है जो वजन रखे और जगह घेरे. We will practically do it. But before that, just have a glance on the text. हम टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं. अगले क्लासेस में आप लोगों ने खुद टेक्स्ट पढ़ना होगा. I'm not going to read it for you, but today let's have a glance. Matter is anything that has mass and occupy space. You look बेटा दोनों चीजें, mass और space. For example, chair, table, etc. Matter is usually classified or found in 3 physical states. ये हम पढ़ेंगे डिटेल से. Solid, liquid and gas. Matter is found in 3 states. In our daily life, we come across all these forms of matter in different shapes. One important thing to remember that solids do not need the container to be kept in, while liquid and gases need container. उसके बाद में हम जाएंगे डिटेल से. यहां पे प्यारे बच्चों आपको कुछ पिक्चर नजर आ रही हैं. सॉलिड, इसके नीचे जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, दीज आर सॉलिड्स. जो आपको यहां पे लिक्विड जो नजर आ रही है, दीज आर ऑल लिक्विड्स. जो इस कैप्शन के नीचे आपको नजर आ रही है, दीज आर ऑल गैसेस. आई विल कम बैक towards this. Let me show you some pictures कि किस तरीके से आप मास और स्पेस को जज कर सकते हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं मैटर की तरफ. नंबर 1,
You see the stone in the hand. प्यारे बच्चों, आप एक पत्थर लें, take a stone in your hand and you see the stone will be क्या? It will be attracted by the earth. जमीन इसको अपनी तरफ खींचती है and you feel that it possess some mass, right? अब बच्चे, जरूरी नहीं है कि ये पत्थर ही हो, स्टोन ही हो, ये ज्यादा वजनी हो। ये कभी कभार बहुत हल्का, बहुत ही वेरी वेरी लाइट, जो आपको हार्डली फील होता है, वो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ पे आपने हाथ ऐसे पकड़ा और किसी ने आपके हाथ पे फीदर रख दिया। यू नो दिस इज द लाइटेस्ट सब्सटेंस। आपने फीदर्स देखे होंगे ना, जैसे हवा चलती है सबसे पहले फीदर्स को उड़ाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका भी वजन होता है और अगर इन दोनों को आप मुट्ठी को बंद कर लोगे, देन यू विल फील दैट समथिंग इज देयर इन योर पाम। आपके हाथ में कुछ है, तो लिहाजा स्पेस भी रखता है। एंड इसी तरीके से अगर आप ये फिंगर्स को कर्ल कर लें और इसको बंद कर दें, तो क्या होगा? ये भी आपको फील होगा कि आपके हाथ में फीदर है। सो वी कैन से दैट the stone is a matter, and you can also say that feather is also a matter. So प्यारे बच्चों, you saw that stone is a matter because it possesses mass and it occupies some space. Same is the case with the feather. feather भी mass भी रखता है और स्पेस भी, जगह भी घेरता है। सो वी फाउंड दैट स्टोन एंड फीदर बोथ आर मैटर। नाउ यू टेल मी, एयर, अगर वी टॉक अबाउट एयर, हवा के बारे में प्यारे बच्चों आप क्या कहते हैं कि आया एयर इज अ मैटर और नॉट? हवा मैटर है या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए I am going to tell you one more example of it. See this, these are balloons, right? अभी हम चेक करेंगे कि एयर जो है आया ये मैटर है या नहीं है, right? तो you see balloons here. यहां पे आपने रंग बरंगी different colors of balloons you saw here. अब इस सारे बेलून्स ने जितनी जगह घेरी है, आई पिक द पर्पल वन, मैंने इसमें से पर्पल वन बैलून को लिया, उसमें हवा भर दी। जितनी जगह इन सारी बैलून ने इकट्ठे में ली थी, उससे कहीं ज्यादा एक बैलून ने स्पेस कवर कर लिया। जो चीज स्पेस रखे, कवर करे, क्या कहलाती है? मैटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं दैट एयर इज मैटर। अब एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने उसको परफॉर्म करना है घर पे। यू जस्ट टेक अ लाइट स्टिक और उसको एग्जैक्टली इन द मिडल धागे के साथ बांध दें और किसी फास्ट चीज के साथ। बट रिमेंबर, जब आप इसको खाली बांध दें तो इसमें जरूर देखें कि वो बिल्कुल बैलेंस हो। उसके बाद क्या करें, एक बैलून यहां से उठा लें और इसको एम्प्टी बैलून इसके साथ कागज से बांध दें और उसी वजन का, उसी साइज का यहीं से एक और बैलून लें इस तरह भरा हुआ और इसको भर दे हवा से। दिस इज अनदर वन इंटरेस्टिंग वन। यू विल सी दैट दिस बैलून इज हैवियर, यानी ये नीचे जाएगा और जो एम्प्टी बैलून है ये ऊपर जाएगा। यानी यू सॉ दैट एयर इज ऑल्सो अ मैटर। हाँ, याद रखें, ये जो इसके अंदर एयर है ये नॉर्मल एयर होना चाहिए, ये आपके पास यानी कोई खास गैस नहीं होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डैम श्योर कि इस तरह इस एक्टिविटी से आपको इस चीज की समझ आ जाएगी, राइट? ओके।